نواز شریف کے چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت منظور، العزیزیہ ریفرنس کی سزا رہائی میں رکاوٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت شہباز شریف کی درخواست پر منظور کی۔ نیب کے مطابق اس نے انسانی ہمدردی پر ضمانت کی مخالفت نہیں کی۔ ادھر مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سبات پیر تک ملتوی۔ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست کی مزید سبات منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ نواز شریف کی حالت انتہائی نازک ہے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے طبی رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی۔ کہا پلیٹلیٹس میں کمی ہونے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ بیماری کی تشخیص کے لیے نواز شریف کے مزید ٹیسٹ کرنا ہوں گے۔ گزشتہ روز نواز شریف کو سینے میں درد ہوئی، انجائنا کے علاج کے لیے مخصوص ادویات نہیں دے پائیں گے۔ نواز شریف کے جسم پر دھبے پڑ گئے، سروسز اسپتال میں تفصیلی طبی معائنہ۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق جلد پر دھبے اندرونی بلیڈنگ کی وجہ سے نمودار ہوئے۔ امیونوگلوبولن انجیکشن سے نواز شریف کا علاج مزید 5 روز جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ادھر مریم نواز کو جیل سے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نواز شریف کی والدہ اور شہباز شریف نے بھی عیادت کی۔ میری پوری قوم سے آپ ان کیمراز کے ذریعے عوام سے درخواست ہے کہ وہ ان کی صحت کے لیے وہ دعا کریں۔ لاہور میں سروسز اسپتال کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنان کی میاں نواز شریف کی صحت کے لیے دعائیں۔ ضمانت منظور ہونے پر خوشی کا اظہار بھی کیا، مٹھائی بانٹی۔ شہباز شریف کی عوام سے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی درخواست۔ ضمانت پر عدالت عالیہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کہا ڈاکٹر تاحال نواز شریف کی بیماری کی وجوہات نہیں جان سکے۔ عمران نیازی صاحب اپنے وزیروں مشیروں کو بتائیں، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ شہباز شریف پھٹ پڑے، کہا سیاسی مخالفین کی بیماریوں کا مذاق اڑانے والے مت بھولیں، وقت بدل جاتا ہے۔ طلال چودھری بولے وزراء نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑاتے رہے۔ شیخ رشید نے بھی نامناسب گفتگو کی، یہ لوگ بیانات کچھ اور دیتے ہیں لیکن یہ تاریکی میں کچھ اور ہیں۔ جو بھی کورٹ کی ڈیسیجن ہوگی ہم ہر طریقے سے اس کورٹ کی ڈیسیجن کو سپورٹ کریں گے۔ ہم the Prime Minister of Pakistan has said we will support the decision of the court۔ نواز شریف کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، یاسمین راشد کا دعویٰ، کہا پلیٹلیٹس 22,000 ہو گئے، رات میں طبیعت خراب اور بلڈ پریشر زیادہ ہونے پر انجائنا کی تکلیف ہوئی تھی۔ نواز شریف اگر باہر سے کوئی ڈاکٹر بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ ظفر مرزا بولے بیماری کا علاج پاکستان میں ہے تو نواز شریف کو باہر کیوں بھیجیں۔ فردوس عاشق نے کہا نواز شریف کی صحت پر وزیر اعظم اپڈیٹ لے رہے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم سیاہ کشمیر کی تقریب، پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی شرکت، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت۔ لندن کے علاقے ہونسلو میں فلاحی تنظیم کی تقریبیں، تقسیم انعامات، ایم پی یاسین احمد، وریندر شرما اور ایم پی اے جلیل احمد شرق پوری کی خصوصی شرکت۔ شاندار کمیونٹی صحافتی خدمات پر 92 نیوز کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی برآمدات کی شرح میں اضافہ اور خسارے میں کمی خوش آئند بات ہے۔ ملکی معیشت جلد اڑان بھرنا شروع کر دے گی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ہیتھرو ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 PM پرائم ٹائم بلیٹن، میرا نام دانش حسین اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اگلا ہفتہ ملکی سیاست کے لیے اہمیت اختیار کر گیا۔
आज़ादी मार्च पर हुकूमत और अपोजिशन में हुई अहम बैठक, JUI कायदीन के लिए खुसूसी कंटेनर। वज़ीर आज़म ने सानेहा साहिबाल पर बड़ा फैसला किया। शनाख्ती कार्ड की शर्त पर दरमियानी रास्ता निकालने का इंदिया। गिलगित बल्तिस्तान के पुरजोश दरियाओं में ख्याकें। जापान में मुस्तकबिल की गाड़ियां और सबवे पर जलवे, ये सब कुछ शामिल है इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले जिक्र नवाज शरीफ की जमानत की। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली। मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म की जमानत मंजूर होने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मिठाइयाँ तकसीम की। इसी पर देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ है कि बीमारी से नहीं अदालत से। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ को 1 करोड़ के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब और डॉक्टर महमूद अयाज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट समेत अदालत में पेश हुए। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ को दोबारा एंजाइना की तकलीफ हुई। उनकी हालत इंतहाई नाजुक है। बीमारी की दुरुस्त तशखीस के लिए मजीद टेस्ट कराना होंगे। प्लेटलेट्स बढ़ने पर ही बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाने की हिदायत की। जस्टिस अली बाकर नजफी ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आप इस रिपोर्ट की रोशनी में जमानत की मुखालफत करते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेडिकल इलाज जेल या पाकिस्तान में मुमकिन है तो जमानत ना दी जाए। नवाज शरीफ की जिंदगी हमारे लिए कीमती है। डॉक्टर समझते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लेटलेट्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे, सिर्फ इलाज ही किसी को सेहतमंद नहीं कर सकता। इर्द गिर्द का माहौल भी मरीज की सेहत पर असर डालता है। नवाज शरीफ को पसंद के अस्पताल में जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पहले अदालत को बताया कि नवाज शरीफ का नाम ECL में नहीं, लेकिन वक्फे के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को दोबारा बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में शामिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग में जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। नवाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड ना तो तौसी की गई और ना जुडिशल किया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया क्यों ऐसा किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एहतसाब अदालत ने इस दरखास्त के फैसले तक रोक रखा है। अदालत ने इस्तफसार किया क्या आपने नवाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरखास्त की है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब था एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड के लिए कोई दरखास्त दायर नहीं की गई। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा काट रहे हैं। शहबाज शरीफ की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बड़े भाई को 21 अक्टूबर की रात नाजुक हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। नैब की हिरासत के दौरान नवाज शरीफ के ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद 16,000 तक गिर गई। नवाज शरीफ बड़े भाई हैं और नवासे के अलावा एक मैं ही खानदान का मर्द मेंबर नवाज शरीफ के करीब हूँ। आइन के तहत नवाज शरीफ को इलाज करवाने की इजाजत ना देना आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की नफी होगी। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा किया जाए, पाकिस्तान या बैरून मुल्क में जाकर इलाज कराने की इजाजत भी दी जाए। इस दौरान मरियम नवाज की दरखास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके वालिद की हालत तशवीशनाक है जिनकी तीबारदारी मरियम को करनी चाहिए। मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान में अपने वालिद के पास वाहिद औलाद है। कुछ हो गया तो वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा कोई कानून नहीं कि किसी कैदी को वालिदैन की तीबारदारी के लिए जमानत दी जाए। मरियम नवाज की दरखास्त जमानत पर मजीद कार्रवाई पीर को होगी। अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां तकसीम की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। MS सर्विसेज अस्पताल ज़ाती बालिज डॉक्टर अदरान भी तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दी कि हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन डॉक्टर को बताना होगा कि उनकी जान को खतरा है। MS सर्विसेज अस्पताल ने नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक करार दे दी। ख्वाजा हारिस की नवाज शरीफ को मर्जी से इलाज कराने की इजाज़त देने की इस्तदा। इस्लामाबाद से देखिए फयाज महमूद की रिपोर्ट। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के मुल्जिम नवाज शरीफ का इलाज जारी है मगर हालत तशवीशनाक है। प्लेटलेट्स बन रहे हैं मगर फिर कम हो जाते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर सलीम ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। बताया कि नवाज शरीफ को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी स्पेशल बेंच ने ये समाअत की। रिमार्क्स दिए कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। नवाज शरीफ को मुताबिक बीमारियां हैं, क्या सब बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, जिस पर MS सर्विसेज अस्पताल ने हाँ में जवाब दिया।
ख्वाजा हारिस ने अपने मौक्कल को मर्जी से इलाज कराने की इजाजत देने की इस्तदा की तो डॉक्टर सलीम ने बताया कि नवाज शरीफ ने हमें किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाने की तजवीज़ नहीं दी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वकील सफाई कोई इल्जाम नहीं लगा रहे कि बेहतर इलाज नहीं हो रहा, वो मर्जी का इलाज चाहते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम डॉक्टर नहीं हैं, नवाज शरीफ की हालत से मुतालिक डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, यहाँ कानूनी नहीं तिब्बी मामला है। मेरा सर्विसेज अस्पताल से तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। अदालत आए लीगी रहनुमाओं ने भी अपने कायद की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। अदालत ने नवाज शरीफ की तफसीली रिपोर्ट्स, जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और MS सर्विसेज अस्पताल को तलब करते हुए मजीद समात मंगल तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ की अवाम से नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने जमानत पर अदालत आलिया का शुक्रिया भी अदा किया। और डॉक्टर ताहा नवाज शरीफ की बीमारी की वजूहात नहीं जान सके। पूरी कौम से आप इन कैमरास के जरिए आवाम से दरखास्त है कि वो उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और पीर वाले दिन यहीं लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ की साहबजादी की जो बेल की एप्लीकेशन वो अदालत आलिया सुनेगी। पूरी कौम से दरखास्त है कि उनके लिए भी आप दुआ करें कि मियां साहब की जो ज़ौजा वो तो इस दुनिया से चली गई, अब ये बेटी मरियम है जिन्होंने बीमार बाप की तीमारदारी करनी है, उनके पास रहना है, उनके दुख दर्द को उन्होंने सुनना है और उनको एक बेटी के तौर पर उन्होंने पूरा साथ देना है। खुदा ताला हम सब का हामी नासर हो। नवाज शरीफ की सेहत में ठहराव न आया, प्लेटलेट्स की तादाद फिर से कम हो गई, जिस्म पर सुर्ख धब्बे बन गए हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन से इलाज जारी रखने का फैसला किया गया है। मरीम नवाज को भी तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, सेहत में ठहराव आया, प्लेटलेट्स में एक बार फिर बेहतरी आई मगर फिर कम हो गए। बीमारी की वजह से नवाज शरीफ के जिस्म पर सुर्ख धब्बे भी बन गए। मेडिकल बोर्ड ने इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन से इलाज का फैसला किया है ताकि अंदरूनी ब्लीडिंग कम और प्लेटलेट्स में इजाफा हो। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा कि कुछ वजूहात पर बायोप्सी और पेट स्कैन टेस्ट नहीं करा सकते। भी जाके बोर्ड करेंगे उसके बाद हम बता पाएंगे। ठीक है, कुछ डायग्नोज हुआ है कि उनको बीमारी है? जी, प्रोविजनल डायग्नोज हमने बताया ना कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर है, उसी के लिए हम उनको ट्रीट कर। हेमाटोलॉजिस्ट प्रोफेसर ताहिर सुल्तान शमसी ने कहा है कि नवाज शरीफ की बोन मैरो मुकम्मल फंक्शनल है। बीमारी की तशखीस हो गई है, जिस बीमारी का नाम एक्यूट ITP है। ये अमूमन छोटे बच्चों को होता है और लेकिन ये है कि बड़ी उम्र में भी लोगों को हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कैंसर नहीं है, ये दूसरी अच्छी खुशी की खबर है। तीसरी बात ये है कि काबिल इलाज है और चौथी बात यह है कि इनका बोन मैरो, जिसे हड्डी का गुदा कहते हैं उर्दू में, वो उसका कोई कैंसर नहीं है। मरियम नवाज को भी तिब्बी मुआयने और टेस्ट के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मरियम की ECG रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मजीद टेस्ट भी किए गए। मरियम ने वालिद की तीमारदारी भी की, उन्हें वालिद के साथ वाले कमरे में रखा गया है। नवाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर बेटे की अयादत के लिए अस्पताल पहुंची। शहबाज शरीफ ने भी अस्पताल पहुंचकर भाई से मुलाकात की। सर्विसेज अस्पताल में मुस्लिम लीग नून के कारकुन नवाज शरीफ की सेहत के लिए कुरान ख्वानी और दुआएं करते और नारेबाजी करते रहे। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को बेहतर इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। इस वक्त पहली तरजीह नवाज शरीफ की सेहत है, जिस पर हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लेटेस्ट जो है वो अपडेट लेने के लिए डॉक्टर फैसल को उनकी इयादत के लिए भेजा और जो टीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज कर रही है उनसे तफसीली उन्होंने मुशावरत की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये अज़्म दोहराया कि मियां नवाज शरीफ को हर मुमकिना बेहतरीन इलाज मालजे की सहूलतें फराहम की जाएँ। सियासत
صحت پہ بھاری نہیں ہونی چاہیے. ہماری اس وقت اولین ترجیح جو ہے وہ میاں صاحب کی صحت ہے اور سیاست جو ہے اس وقت وہ سیکنڈ پرائورٹی ہے. پہلی پرائورٹی جو ہے وہ ان کی صحت ہے. سیاسی رشتے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں اور انسانی رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر پاکستان ہائی کمیشن لندن میں جمعے کے روز کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا گیا. اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی تصویری نمائش بھی لگائی گئی. تفصیلات وسیم قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں نماز جمعہ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی مذمت کی گئی اور وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے ظلم و بربریت کی تصویری نمائش کر کے حاضرین کو کرفیو کا شکار مظلوم کشمیریوں کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا. ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. گورنمنٹ پاکستان جو ہے کشمیر کے معاملے میں پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ جو ہے ایکسٹینڈ کرتی ہے. یہ ہماری پالیسی ہے اور اس کے تحت ہم نے یہاں کے پارلیمنٹیرینز کو سول سوسائٹی کے ممبرز کو اس کے علاوہ جو ہے تمام وہ شعبات جو کسی طریقے سے انسانی حقوق کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً کوئی 150-200 کے قریب ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ متحرک ہیں اور مستقل جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ آواز بے انتہا بلند اور کافی اس کی بازگشت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 82 دن سے کرفیو جاری ہے جبکہ موسم سرما بھی آن پہنچا ہے جس کی وجہ سے کشمیری ذہنی اور معاشی اذیت کا شکار ہیں. ڈیمانڈ ہے پارلیمنٹیرینز کی سول سوسائٹی کے ممبرز کی اور کشمیری کمیونٹی کی وہ یہ ہے کہ جو وہاں ظلم ستم ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے ماضی میں اس کا جو ہے اس کو انصاف دلایا جائے. یہ جو وائلنس کی سائیکل ہے اس کو بار بار جو ہوتی ہے اس کو روکا جائے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کا شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ یہاں موجود پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. وسیم کاظمی 92 نیوز لندن. اہم خبر شامل کریں گے. 27 اکتوبر کو بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پرامن مظاہرے پر پابندی کا فیصلہ واپس لیا جائے. لارڈ نذیر احمد کا کمشنر لندن کو خط. کہا اظہار رائے کی آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے پرامن مظاہرے کی اجازت دی جائے. بھارت نے ظلم و بربریت کی بدترین مثال قائم کر رکھی ہے. 82 روز سے کشمیریوں کو مقبوضہ وادی میں محصور کیا ہوا ہے. برطانیہ میں موجود کشمیری خاموش نہیں رہ سکتے. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے 27 اکتوبر کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے جسے دنیا بھر کے کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. بریٹن میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری رہنما نذیر قریشی اس وقت 92 نیوز کے نمائندے چودھری نثار کے ساتھ موجود ہیں. مظاہرے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھیے. یہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما جناب نذیر قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان نے کشمیر کی تحریک کو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تحریک کشمیر میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 27 اکتوبر آ رہا ہے اس میں آپ کس طرح سے پروٹیسٹ لیڈ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ جو مولانا فضل الرحمان کی ایک سسٹم پاکستان میں چلا ہوا ہے کیا وہ اس 27 اکتوبر کے دن کو پس پشت تو نہیں ڈال رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات پر کہ آپ جب بھی کشمیر کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ آگے ہوتے ہیں. تو آج بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک 27 اکتوبر کا تعلق ہے جس کو ہم بلیک ڈے کے طور پر ہر جگہ منا رہے ہیں, یہ جو اس سال کا 27 اکتوبر بلیک ڈے جو ہے اس کی ایک خاص افادیت ہے. دراصل آج ہم اسی دور میں لے چکا ہے مودی نے ہمیں جو 47 کا تھا. جس طرح ہم 47 میں تھے آج ہماری تحریک وہاں ہی اس نے پہنچا دی ہے. اس وقت بھی جب ہندوستان کی فوج آئی انہوں نے ہم پر قبضہ کیا. آج یہ ثابت کر رہے ہیں جو انہوں نے پچھلی دفعہ ہماری 2 دفعہ 370 جو کہ ہمارے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا سبسٹیوٹ نہیں ہے لیکن اس کو ختم کر کے انہوں نے کشمیریوں کو وہاں تک پہنچا دیا, دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس لیے کشمیریوں نے جب بھی موقع ملا اپنے مظاہرے کیے, اپنا جو رائے تھی اس کا اظہار کیا اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا انہوں نے. آج بھی یہ ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے 1.5 لاکھ فوج اور لائی
9 से ज़्यादा फ़ौज उन्होंने वहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा फ़ौज उन्होंने वहाँ पर जमा की है, और इसके बावजूद भी लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। ये दूसरी बात है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं आवाम को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए दरअसल हमने वहाँ पर अमन कायम किया, जो कि नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदानों को बहरहाल इन मौक़ों पर यह सोचना चाहिए इसका असर मकबूजा कश्मीर की तहरीक पर क्या पड़ेगा। क्या ये ज़रूरी था कि आज 27 अक्टूबर को ही ये होता? क्या आज ये नहीं हो सकता था कि पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीर के ब्लैक डे के तौर पर मनाते, आगे इसको लेते, या इससे यानी पीछे थोड़ा सा लिया जाता तो वो अच्छा था। तो हमें उम्मीद है कि मौलाना इस बारे में भी सोचेंगे। जी, आपने सुना, इनका यही कहना है कि जो कश्मीर का दिन है वो तमाम जितने भी कश्मीरी पाकिस्तानी उनको अपनी जो इख्तलाफात को भुलाकर एक साथ चलना चाहिए और इस एहतजाज को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहिए, और मौलाना फजल रहमान को भी चाहिए था कि वो इस दिन पे इस एहतजाज को ना रखते। जी, ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया, जिसका एहतमाम EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के कश्मीर पीस फोरम, इंटरनेशनल सिख काउंसिल ऑफ बेल्जियम और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम के इश्तराक से किया गया। शुरका ने आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। असगर मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने होने वाले इस मुजाहरे में शुरका का जोशो खरोश काबिले दीद था। शुरका ने भारत और मोदी के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाकर माहौल गरमाए रखा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मुजाहरे का एहतमाम EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ने कश्मीर पीस फोरम, इंटरनेशनल सिख काउंसिल ऑफ बेल्जियम और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम के इश्तराक से किया, जिसमें कारकुन, ओहदेदार और पाकिस्तानियों कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों से खुलकर इजहार यकजहती किया। शुरका ने इस मौके पर बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी के कश्मीर में जुल्म सितम की तस्वीरी झलकियाँ मौजूद थीं, जबकि कश्मीर की आज़ादी के नारे भी दर्ज थे। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन परवेज इकबाल के पुरजोश नारों का मुजाहिरीन ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चे भी बड़ी तादाद में मुजाहिरे में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खात्मे तक दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर गुजरात के कसाई मोदी का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ के सामने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर फजा मोदी मुखालिफ नारों से गूंजती रही। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप, पश्तून ऑर्गेनाइजेशन और दीगर तंजीमों के इश्तराक से यूरोप भर में कश्मीरियों से जारी यकजहती का सिलसिला जारी है। दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ के बाहर मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरा भी इसी सिलसिले की कड़ी था। मुजाहरे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की, जबकि फजा मोदी मुखालिफ नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने सबसे लाल परचम लहराते हुए नारों का पुरजोश जवाब दिया और मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में तवील तरीन लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की भरपूर मसम्मत की गई। रियाज से उमर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाना में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मकबूजा वादी में 2.5 माह से जारी कर्फ्यू के बायस लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आलमी बरादरी की मुसलसल खामोशी इंसानियत की तस्दील का बायस बन रही है। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कहा कि कश्मीर के मसले का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल हो सकता है और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करके इस मसले को हल किया जाए। पाकिस्तानी सफीर का मजीद कहना था कि वज़ीर इमरान खान कश्मीरी अवाम का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने एहसन अंदाज में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगी। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही खित्ते के दो ममालिक हैं, दोनों जोहरी तवानाई के मालिक हैं। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई भी बदकलामी हो जाए, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आम आदमी, आम शहरी इसका खमियाजा भुगत सकता है। हिकमत अमली है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हिकमत अमली ये है कि हमने खुद निसारी पे रहना है, कश्मीरी भाइयों और बहनों का साथ देना है
और हिंदुस्तान को हर चप्पे पे याद कराना है कि अगर तुम्हारा जुल्म हद से बढ़ा तो हमारे पास वो कुछ है जिससे हम उनका जवाब दे सकते हैं। तकरीब में बच्चों ने कश्मीर में जारी जुल्म सितम को टैबलो के जरिए पेश किया, जबकि इलियास रहीम ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से जदोजहद जारी रखने के अज़म की करारदाद पेश की। तकरीब से अब्दुल कयूम खान, मुजाहिद कायम खानी, एहसान दानिश, इकबाल वदूद, हुमायूं महसूद, उमर फारूक, सरदार रज़ाक और दीगर ने भी खिताब किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं कि अमेरिका में मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। IMF की नई MD जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तानी बरामदात की शरह में इजाफा और खसारे में कमी आ रही है, जो कि खुश आइंद है। पाकिस्तान रवानगी के वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। हमारे इस विज़िट के 3 मक़ासद थे। पहला नंबर ये कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF की क़यादत है उनके साथ मुलाकातें करना, और साथ ही साथ जो बैनुल-अक़वामी अदारों के बड़े चेयरमैन और CEOs थे उनके बारे में पाकिस्तान को बताना कि यहाँ पर एक इस्लाहात का सिलसिला है और एक इस्तेहकाम की तरफ जो मईशत जा रही है उसमें वो भी आके शामिल हों और यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हों और इकॉनमी की जो रफ्तार है उसको भी तेज़ किया जाए। दूसरा नंबर हमारे मकसद ये था कि हम बायलैटरल जो ममालिक हैं उनसे 2 तरफ़ा ताल्लुकात पे बातचीत करें। और तीसरी चीज़ ये कि अब यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम किया था, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हार्वर्ड के जो बड़े प्रोफेसर्स हैं उनमें नोबेल प्राइज़ जिनको अभी मिला है प्रोफेसर क्रेमर उस समेत शामिल थे। और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो बड़े सिलिकॉन वैली और न्यूयॉर्क में अच्छी हैसियत में हैं वो सब लोग भी वहाँ आए। और एक खुसूसी चीज़ जो हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भी उनसे टेलीविज़न लिंक के थ्रू बातचीत की। लंदन के इलाके हौंसलों में फलाही तंजीम की जानिब से कम्युनिटी में नुमाया खदमात अंजाम देने वाले अफराद में तारीफी असनाद और अवार्ड तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी MP यासीन अहमद, अविंदर शर्मा और A जलील अहमद शरकपुरी थे। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट से। लंदन के इलाके हौंसलों में कम्युनिटी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए फलाही तंजीम ज़बरदस्त बटरफ्लाई की ऑर्गेनाइजर अलमारा अवान ने पार्लियामेंट हाउस में खूबसूरत शाम का एहतमाम किया, जिसमें बरतानवी अरकान पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ ममालिक के ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी MP यासीन अहमद, वरिंदर शर्मा और पंजाब असम्बली के MPA जलील अहमद शरकपुरी थे। मेहमान खसूसी ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर तारीफी असनाद और अवार्ड्स तकसीम किए। अवार्ड वसूल करने वाले फनकारों ने इस मौके पर अपने फन का मुजाहरा करके समा बांध दिया। यही आरज़ू है दिल में जब जान तन से निकले, जब जान तन से निकले, मेरा सर हो या मुहम्मद, मेरा सर हो या मुहम्मद, तेरा हो आसिताना ऐ ताजदारे बतहा। गंगा गया हो गल मुकदी नाही, ओ भावें 100 गोते खाइए, बुल्ली शाह गल तायों मुकदी हो जद मैनू दिलों गवाइए। कम्युनिटी की बेहतरीन कवरेज और आला सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में 92 न्यूज़ UK को भी खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खसूसी पंजाब असम्बली के MPA जलील अहमद शरकपुरी समेत दीगर का कहना था कि मशरक़ और मगरब के हसीन इम्तजाज से भरपूर ऐसी तकरीबात कम्युनिटी के अंदर इफ़हाम व तफ़हीम और भाईचारे की फ़िज़ा पैदा करती हैं। उनका कहना था कि दीन इस्लाम भी प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। जो हमारा मदर टाउन है, अगर उधर जाके हमारे घर की अगर कुछ पहचान देखे तो वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, करीब हमारे सिख कम्युनिटी है। हमारे घर से सब लव करते हैं और उसके रीज़न ये है कि हमारे बुजुर्गों की तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि ये फलां है और ये फलां है।
सब के लिए मोहब्बत है और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैगाम दिया और दीन की जो बात है वो भी प्यार और मोहब्बत से। तो ये जो दुनिया की एक अजीम पार्लियामेंट है, अगर शर्मा साहब और बाकी यहाँ के पार्लियामेंटेरियन इस बात का बायस बने कि हमने इंसानियत के लिए काम करना है और दुनिया के लिए काम करना है, ना कि किसी रिलीजन के लिए, ना किसी काले गोरे चिट्टे और ब्राउन के लिए, तो फिर मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया जन्नत है। मियां जलील अहमद शरकपुरी का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की इनफरादी फौज तबाहकुन नस्ली की दौड़ का कोई जवाब नहीं रहता। दुनिया की तामीर पर काम जबकि इसकी तखरीब पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। जब अक़वाम मुत्तहिदा बन चुका तो फिर इंडिविजुअल कंट्रीज की फोर्स क्यों है? हम क्यों पैसा जाया करते हैं एटम बम के ऊपर? हम क्यों पैसा जाया करते हैं मिसाइलों के ऊपर? जो इंसान की कंफर्ट देने वाली गाड़ी है वो तो बहुत सस्ती है, लेकिन जो इंसानियत को तबाह करने वाली गाड़ियां एटम बम और जहाज हैं वो बहुत महंगे हैं। तो दुनिया पूरी, अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और छोटे छोटे मुल्कों का बजट देखें और फिर अमेरिका जैसे और रूस जैसे बड़े मुल्कों का बजट देखें, तो दुनिया को तबाह करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो बेपनाह है और दुनिया को कंफर्ट देने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो बहुत मामूली है। तकरीब की मुंतज़म अलमारा अवान और दीगर शुरका ने इस मौके पर खूबसूरत तकरीब को बेहद सराहा। Recognise people that are working in the community and making a difference to people's lives. It was about appreciating people that work hard. It's about putting together the best of the best. And in my opinion, this is my home and everyone is here, the best of the best. आज हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी बुलाया गया है और वहाँ पे सबको एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिससे कि इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। Everyone is enjoying with the food and families, and on top of that, because it's a charity event, so I would like to congratulate all the organizers on behalf of Silverdine ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। बहुत अच्छा हुआ, everything went lovely, everybody seems happy and a lot of effort has gone into make today a success. हर टाउन में इसी तरह के कल्चर हर हफ्ते में एक होना चाहिए। बहुत सारी कम्युनिटीज आई है, मैं अलमारा जी को बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। व्हाट अ वंडरफुल जॉब। हाउस ऑफ पार्लियामेंट की तकरीब के बाद निजी होटल में मेहमानों की इज्जत अफजाई के लिए पुरवकार शाम का एहतमाम भी किया गया, जिसमें बरतानिया के मरूफ मशरकी संगीत में महारत रखने वाले गुलकारों ने सुर संगीत के जादू जगाए। कारों ने रवायती गीत और सूफियाना कलाम भी पेश किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। कंटेनर में 39 अफराद की हलाकत ने बरतानवी शहरियों को हिला के रख दिया। वज़ीर आज़म से लेकर आम शहरी सब ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। इस हवाले से अपडेट लेते हैं लंदन में मौजूद 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हुकूमत और एजेंसियाँ क्या मनसूबाबंदी कर रही हैं, उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, जो 2 रोज़ कबल लंदन के अंदर अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था, जब 39 जो लोग हैं वो ट्रेलर के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए, तो पुलिस की तफ्तीश तो वैसे जारी है। ताहम आज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि उसमें कोई पाकिस्तानी जो है वो उन हलाक शुदगान में शामिल नहीं है, लेकिन अभी तक जो है वो लंदन पुलिस बहुत सीरियसली इस वाक़े को ले रही है। चूँकि लंदन के अंदर जब वो ट्रेलर दाखिल हुआ तो उस वक्त इतनी लाशें जो हैं यहाँ पर बरामद हुई और जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं बरतानिया की, स्कॉटलैंड यार्ड, सब इसको बहुत सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं और वो ड्राइवर ज़ाहिर है उस वक्त से गिरफ्तार है। इसके अलावा इसका जो दायरा कार है वो बल्गारिया तक वसी किया जा रहा है कि जहाँ से ये ट्रेलर चला उधर उस वक्त से इसके साथ कौन था, कौन लोग इस कदर मुलव्वस थे, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर तो लोग थे, वो सारा जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की नज़र है और आयरलैंड ज़ाहिर है जहाँ से ये आया है, इस रास्ते को भी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो चेकअप किया जा रहा है, कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, कैसे इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद के जो अंदर जो है वो हलाक हुए। और पुलिस का अभी तक जो है पुलिस ने इनके नाम और शनाख्त ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि अभी तक उनको शनाख्त करने का जो है वो अमल जारी है। और लेकिन ज़्यादातर इतलात यही हैं कि जो हलाक शुदगान इनमें ज़्यादातर लोग जो है वो चाइनीज़ हैं। जी मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم وفد کے ہمراہ نیویارک پہنچ گئے. وہ 26 اکتوبر کو نیویارک میں پاکستان کے کونسلٹ میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے. لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس سردار محمد شمیم کے نیویارک پہنچنے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے کارکن ضمیر چودھری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نیویارک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو اپنا پیغام بھی دیا. جی ہم یہاں پہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے ملیں, ان کے مسائل سنیں, ان کو حل کریں, اور ہم نے ان کے لیے جو کچھ کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ بھی ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کیا اقدامات کر کے آئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شرکت کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود JUIFA کے کارکنان نے بھی کمر کس لی ہے. پاجی کے دبئی میں نائب امیر نصیب اللہ خان کاکڑ کی رہائش گاہ پر مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا, جس میں شرکاء نے کہا کہ حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہے. سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے. UAE میں جمعیت علماء اسلام فے کے نائب امیر نصیب اللہ خان کاکڑ کی رہائش گاہ پر پارٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا, جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور مارچ میں شرکت کے لیے بنائی گئی حکمت عملی کو حتمی شکل دی. 92 نیوز سے گفتگو میں JUI کے امیر زاہد ندیم نے کہا آزادی مارچ کی تیاری 1 سال سے کی جا رہی تھی اور مارچ میں شرکت کے لیے کارکنان پاکستان جانے کو تیار ہیں. تقریباً ہم 1 سال سے محنت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس وقت پاکستان کا نوجوان طبقہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور متحدہ اپوزیشن کے جتنے جوان ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں, اور ان سب کی ایک خواہش ہے کہ ان جو نااہل حکمران ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. نصیب اللہ کاکڑ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ مارچ میں 15 لاکھ لوگ شریک ہوں گے. انہوں نے کہا استعفے سے کم کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ تو پہلے دن سے ہمارا ہی پیغام ہے کہ استعفا کے بغیر ہم بالکل نہ کوئی ملاقات ہوگا, نہ کوئی کمپرومائز ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے استعفا, اس کے بعد پھر مذاکرات ہوگا. قائدین نے جو تعداد دیا ہوا 15 لاکھ کا دیا ہوا آزادی مارچ کا, انشاءاللہ اس سے بڑھ کے پورا قوم کو دکھائے گا انشاءاللہ. JUI کے رہنما عبداللہ حسن نے کہا مہنگائی نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مارچ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی ہے, لہٰذا اس حکومت کو جانا چاہیے, بلکہ اس ملک کے اوپر ان لوگوں کو آنا چاہیے جو اسلام پسند ہیں. JUI کے رہنماؤں نے مزید کہا اپوزیشن کی خواہش ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے, جبکہ اس وقت قوم کی ترجمانی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. سید مدثر خوشنود 92 نیوز دبئی متحدہ عرب امارات. پرائم ٹائم بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.